Now start again exercise 19.1. Starting problem from 51 to onward. Question number 51. Question number 51 say that integral 2 to 4 x square plus 3x plus 1 dx minus integral 2 to 4 2x square minus 7x प्लस 1 dx। सबसे पहले तो आप ऐसे कर लें कि सेपरेटली हर टर्म पे इंटीग्रल अप्लाई कर दें तो ये आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। सो हियर इंटीग्रल 2 to 4 x square dx first term, then constant outside of the integral 2 to 4 x dx plus integral 2 to 4 1 dx, then minus sign 2 is outside of the integral 2 to 4 x square dx minus 7 outside of the integral 2 to 4 x dx and the constant 1 integral 2 to 4 dx means 1 dx. So integrating each term separately, then applying limit. Here the integral of x square is x power 3 divided by 3 2 to 4. Okay, integral is that. Now next one, next term is plus 3. Integral of x is x square divided by 2, that is 2 to 4, plus 1 is x integral from 2 to 4 minus 2 x power 3 divided by 3 2 to 4 minus 7 x power 2 divided by 2 2 to 4 plus 1 is x from 2 to 4. So now integrate that all terms. After integration, we putting the values. It means limiting value. So shifting 1 by 3 outside of the integral and integrating limit of the integral, putting in the place of x is first upper limit 4 power 3 minus 2 power 3. Here the first term. Now second term plus 3 by 2. In place of x is put x 4 square minus 2 square. That is second term. Now third term. सर जी बच्चे डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते डायरेक्ट जैसे नहीं, कि ये मतलब कि कांस्टेंट को बाहर ना निकालें। नहीं फिर आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे? कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद ही इंटीग्रेट करेंगे ना। यस सर। ठीक है, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट्स को बाहर रखा है। दैट इज minus 2 by 3. Here in place of x is 4 power 3 minus 2 power 3. Now next term is written in next line minus 7 by 2 4 square minus 2 square plus 4 minus 2. So that is completed. Now calculating and skipping one step or not. So okay, चलो solve कर लेते हैं। 4 power 3 is 64 minus 8 plus 3 by 2. 4 power 2 16 minus 4 plus 2 minus 2 by 3 64 minus
8 minus 7 by 2, 16 minus 4 plus 2। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। हर टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 minus 8 is what? You get 56. Okay, so that is the first term is 56 by 3. Second term, that is 16 minus 4 is 12. 3 by 2 multiply by 12. Okay, next term, plus 2 minus 2 by 3 and 56 here, minus 7 by 2 and 12 plus 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें जितना आपसे सॉल्व होता है। तो यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ, that is 56, पहली टर्म 56 by 3। now next term 3 ones are sorry 2 ones are 2 6 are, we get 18, 3 6 are 18। next term is 2, next term सॉल्व नहीं होती तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 are 12, 10 and 11, 112 divided by 3। so here 2 ones are 2 6 are, so we get minus 42 and last term is 2। so आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आता है? शाबाश, कैलकुलेट करें तो कितना आता है आपके पास? 20 22 निकलेगा, माइनस 20 कितना आएगा बच्चे बताएं, शाबाश। अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या आंसर आता है? शाबाश, कैलकुलेट करें और आंसर बताएं क्या आता है। ये निकाला है आंसर? सर ये आ रहा है 116/3 माइनस 116/3 माइनस 116/3। तो ये आपका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की है तो माइनस 116 डिवाइड बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर ये 56 पॉजिटिव क्या है ना? पहला वाला 56 पॉजिटिव है बस सर। जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें सेपरेट हर टर्म की इंटीग्रेशन आपने निकालनी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 52। इसको टेक्निक थोड़ी चेंज करते हैं, आप जरा देखिएगा। मैं टेक्निक चेंज कर रहा हूँ। नाउ इन 52 इज लिमिट इज 0 to 3 and here 6x square plus 4x plus 12 दैट इज dx। आपने dx लाजमी लिखना है। आपने क्विजेज में भी बच्चों ने ना टर्म के साथ dx नहीं लिखा, तो लिहाजा ये चीजें लाजमी लिखनी थी क्योंकि जिसकी थ्रू इंटीग्रेट करते हैं तो वो तो आपको लिखना होता है। प्लस 0 to 3 3x square minus 2x plus 8 dx। ओके, इसको आसान करते हैं, हर टर्म पे अप्लाई करने की बजाय एक स्टेप एक्स्ट्रा करके इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट लिमिट इज 0 to 3 and second limit is also 0 to 3. So if both are limiting is same, so we can write that 0 to 3 is simple and 6x square plus 3x square is what? 9x square. Okay, 4x minus 2x is what? 2x. 12 plus 8 is 20. So that is the simple way to solve problem. आप पिछले वाले को भी ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले उनको देखो, लिमिट सेम है तो फिर आप सेम टर्म्स को, लाइक टर्म्स को ऐड कर दें और देन यू कैन इंटीग्रेट द टर्म्स। सो नाउ अप्लाइंग द ऑन 3 टर्म्स here 9 integral 0 to 3 x square dx plus 2 0 to 3 x dx plus 20
0 to 3 1 dx. Now integrate that terms. So here integral of x square is x की power 3 divided by 3 from 0 to 3 plus 2 time of x square divided by 2 plus 20 x 0 to 3. ठीक है, आपके पास ये टर्म आ जाएगी. 3 ones are 3 threes are, so we get 3 and applying the limit 3 power 3 minus 0 power 3 bracket close, 2 cancel with 2 plus here the limit of that term is 0 to 3 and putting in the place of x is 3, so 3 square minus 0 square bracket close plus 20 and 3 minus 0. So here 3 and 2, 3 power 3 is 27 plus 3 square is 9 plus 20 multiply by 3. तो कितना आ जाएगा आपके पास? 27 multiply by 3 is what? 27 multiply by 3 is what? शाबाश बताएं. 81. 81 81 plus 9 plus 60. 20 multiplied by 3. So we get from here the answer is what? आंसर क्या आएगा? बताएं शाबाश. 90 और 60 I think 150 है ना? We get the answer is 150. आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 150. So प्रॉब्लम आपका सॉल्व. ये आसान तरीका है कि आप उनके टर्म्स को सम कर लें. ठीक है, आप उसको सम कर लेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. राइट? सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. Now next question, that is question number 55. देखें आप. In question number 55, that is limit from 2 to 4 x plus 8 dx, and the second term is minus 4 to 2 8x की पावर 3 नहीं, ये 8 नहीं है, ये है 2x minus 6 dx. Yeah. So first is x plus 8 2 to 4 minus 4 to 2, that is here. अच्छा, अगर आपने ना इसकी लिमिट सही करनी है तो इस पे प्रॉपर्टी लगा लें. देखिए ये 2 to 4 है, the next one from 4 to 2, so limit is opposite. If you want to change the limit to change this term, so you can get minus sign. तो मैं एक स्टेप ऐसे कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ 2 to 4 x plus 8 dx. Now the property is what? When we shifting the limit from upper and lower, so we write minus sign. So already minus sign is here, we change it to sign of plus, that we can write that 2 to 4 2x minus 6 dx. अगर एक बाहर माइनस का साइन लगा लें तो लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज from 2 to 4. पहले से एक माइनस का साइन था, so it's now plus. अब दोनों की लिमिट सेम है, so we can write that from limit 2 to 4 x plus 2x is 3x and 8 minus 6 we get 2 dx. तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. Now integrating each term, 3 is shifted outside of the integral, 2 to 4 x dx plus 2 2 to 4 1 dx. ये आ गया 3 x square by 2 and limit from 2 to 4 plus 2x
limit from 2 to 4. Now write here 3 by 2 in place of x we put first 4 square minus 2 square, then plus 2 and place of 4 minus 2. So here we get 3 by 2, 16 minus 4 plus 2 and 2, 2. So that is 3 by 2 and 12 plus 4. 2 ones are 2 six are. Okay, 2 ones are 2 six are. So 6 threes are 18 plus 4 we get 22. So that is our required answer. अगर हम लिमिट सेम कर लें तो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेंगे। बात समझ आ गई है बच्चे आप लोगों को? सर जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास आगे डेरिवेटिव होना लाजमी था, फिर हम उसको इंटीग्रेट करते थे, तो इसमें ऐसे क्यों है? यहाँ पे भी है बच्चे, ये देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये रहा मौजूद है 1 का इंटीग्रल वैसे भी x होता है, तो यहाँ पे भी यही है कि हम डेरिवेटिव उसका देखते हैं x। क्वेश्चन में वो होता था हाँ बच्चे, सर, वो क्वेश्चन में होता था, हाँ तभी इसके क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन में भी है x को अगर आप अप्लाई करें तो x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, 8 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे और 1 का इंटीग्रल ले लेंगे। यहाँ देखें 2 को बाहर निकालें, x का इंटीग्रल डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है सर। ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ भी मौजूद है, रूल वही लग रहा है सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलें अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। 55 56 तो सेम था, 57 भी वही है। अच्छा ये क्वेश्चन थ्रू आउट अब सेम है, लेकिन मैं इसमें 58 नंबर क्वेश्चन करता हूँ, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 58, ये लिखा है इंटीग्रल 1 to 4 10x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 dx। ये फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास। फिर इसके बाद प्लस के बाद लिखा है 4 to 1 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। ओके, 4x माइनस 8 लिखा हुआ है, सो ये दैट वन। ओके, अच्छा अब देखें लिमिट आपकी अपर और लोअर सेम नहीं है, फ्रॉम 1 to 4 एंड द सेकंड 4 to 1। सो नाउ चेंज दैट लिमिट फर्स्ट। पहले ये लिमिट को चेंज करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो लिमिट को चेंज करते हैं, लिखते हैं 1 to 4 दैट इज सेम 10x स्क्वायर minus 8x plus 3. The first term is same in the integral. Now minus sign and integral 1 to 4. Now changing the limit and sign of minus in opposite on the outside of the integral. Plus 4x minus 8 and dx. Now first simplify the like terms. Limit is same from 1 to 4. Okay, so limit is 1 to 4. Here 1 to 4. So 10x square minus 8x square. So we get from here 2x square. Now next one, minus 8 minus 4. So we get minus 12x. 3 minus minus plus 8 is 11 a dx. Okay, that minus and minus plus 8 plus 3 is 11. Now applying the integral separately on each term. So here 2 is outside of the integral. Integral of 1 to 4 x square dx. That is first term. Now sign of negative. 12 outside of the integral and integral 1 to 4 x dx. That is second term. Now third term. In third term, 11 is outside of the integral from 1 to 4 1 dx. Okay. So that is now finding the integral and calculating the value. So here 2
इंटीग्रल ऑफ x इज x क्यूब डिवाइड बाय 3. ओके, x का डेरिवेटिव मौजूद है, x की पावर में एक ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया है. 1 and 4 minus 12 x square divided by 2 from 1 to 4 plus last term is 11x 1 to 4. Now putting the value of the limit. So here 2 divided by 3, and in the place of x first 4 power 3 minus 1 power 3, that is first term, minus 2 ones are 2 6 are, and we get 6 4 power 2 minus 1 power 2 bracket close plus 11 and 2 4 minus 1. Now calculating that term, so you get your answer. मैं इसके सामने ही इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहीं पर ही देखिएगा. 4 power 3 64 minus 1 63 बनता है. So 2 by 3 multiply by 63 we get from first term minus 6 4 power 2 16 16 minus 1 15, so that is 15 by simple 15. Okay, now the last term is 11 multiplied by 3 is 33. So 3 ones are 3 21s are, you get from here 42 minus 15 6 are कितना होता है 90 plus 33. So you get your answer from here. क्या आंसर आएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे? I think minus 15. क्या आंसर आएगा? Minus 15. So that is your required answer of the problem. ये आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, आप इस तरीके से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लें. शाबाश. किसी का कोई क्वेश्चन है तो बच्चे क्वेश्चन पूछें. क्लियर है बच्चे आप लोगों को? यस सर. ओके, ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है जो कि हमने यहाँ से एक्सरसाइज 19.1. एक क्वेश्चन और 19.1 का करते हैं ताकि एक्सरसाइज एंड हो जाए, फिर थोड़ा सा 19.2 को देखते हैं. ठीक है, 19 चैप्टर के 2 एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके शामिल हैं, 19.1 एंड 2, और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 19.1, दैट इज 60. इसके अलावा फिर एक चैप्टर रह जाएगा कोई या सिर्फ यहीं तक है कोर्स? इसके बाद फिर एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं क्विक मैथ. ठीक है, एक क्वेश्चन वहां से भी आता है. ठीक है, चलिए उस पे बात करते हैं. अभी पहले लेक्चर ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. ठीक है, यस सर. ओके. फ्रॉम इंटीग्रल 2 to 1 3 dx डिवाइड बाय x, ये है. अब अगर आप देखें तो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 एंड द सेकंड फ्रॉम 2 to 1. नाउ फर्स्ट यू चेंज द इंटीग्रल. जैसे आपने पहले अभी सॉल्व किया वैसे ही आपने इंटीग्रल को चेंज करना है. फ्रॉम 1 to 2 you can write 4 into x dx. Now sign of negative due to the using the property and shifting the limit. So 3 by x dx. ठीक है, सो ये आपने लिमिट चेंज की है. सो नाउ द टर्म इज सेम, 4 by x 3 by x. So 4 minus 3 is 1, the denominator is same, so you can simply write that 1 to 2 1 by x dx. When subtracting 4 minus 3 is 1 divided by x, that term is written in the log, natural log of x 1 2. Okay, natural log of x 1 2. So now putting the value ln of 2 minus ln of 1. So here natural log of 2 you calculate with calculator, and natural log of 1 is 0. You can calculate. So answer is ln of 2. Okay, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ln of 2 आ जाएगा, और इसके साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, एक्सरसाइज आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी. 19.1 आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है. अच्छा, 19.2 पे जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मैं कंटेंट भी बता देता हूँ.
19.2 भी डेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन वहां डोमेन की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है डेफिनेट इंटीग्रल ही, लेकिन कंडीशन सिर्फ दी होगी। मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम बताता हूँ, जैसे कि ये है डेफिनेट इंटीग्रल, वही चीजें जो कि हमने भी की है। अच्छा, अभी आपके ना आंसर नेगेटिव में आ रहे थे, ठीक है, लेकिन इससे ऑनवर्ड अब प्रॉब्लम के आंसर आपके नेगेटिव नहीं आएंगे। हमने एरिया अंडर द कर्व, गौर से सुनिएगा, वी वांट टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, यानी हमें किसी क्लोज डोमेन में एरिया निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। माइक ऑफ करें, माइक किसका ऑन है? ये माइक किसका ऑन है बच्चे? अदील किसका माइक ऑन है? अच्छा इधर देखें सर बच्चे। किसी का नहीं। अच्छा आपको आवाज नहीं है या दिल के किसी का माइक ऑन था, मोबाइल बज रहा था, पता नहीं क्या। अच्छा सर वो तो आई है इसके बाद। हाँ, अच्छा ये देखिए 0 दैट इज ग्राफ है एक्स एंड वाई प्लेन में, इन एक्स एंड वाई प्लेन here is the curve, that is the curve. For example, from the first point initial is called x and the last terminal point जो हम इसको कहते हैं that is say चलें इसको कहते हैं a, from a to b. So we want to find the area of this region. हमें इस region का area निकालना है. So area of that region cannot be negative. You know that area of any function always is positive. If it is negative, there is some mistake in problem. आप problem में कोई mistake कर रहे हैं। तो हमें किसी closed domain में area निकालना हो तो फिर हमारे पास तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमें गिवन होगा। बेसिकली ये डोमेन है और इसके बारे में हम ये कहते हैं कि a is less than equal to x less than equal to b and we can define in integral is that a to b and function which have the graph and which integrate with respect to x. तो ये हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल ये है। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास इसके अगेंस्ट 19.2 से पहले के एग्जांपल है, दैट इज रिटन डिटरमिनेट द एरिया, वो आपको क्लियरली क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x square in the domain of written that above the x axis के ऊपर, that is the x axis उसके ऊपर, and having the x is equal to 1 and x is equal to 3. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन है डिटरमिन द एरिया f of x square from the above of the x axis के above यानी पहले क्वाड्रेंट में, and x is equal to 1 to 3. So we can find the area. You can write that area is equal to integral a to b. The lower limit is 1 is here and upper limit is the highest, यानी lower limit आपकी छोटी होती है and upper limit आपकी बड़ी होती है। ठीक है, so limit and then function f of x dx. The function is what? Area is equal to from 1 to 3 x square. Function is x square dx. So area is equal to x power 3 divided by 3 from 1 to 3. Okay, you can integrate simply जैसे आपने पहले इंटीग्रेट किया था। x का डेरिवेटिव 1 है, साथ मौजूद है x की पावर 3 and divide by 3. Now applying limit 1 to 3. So we get 1 by 3 and place of x we put 3 की पावर 3 minus lower limit 1 की पावर 3. So that is 1 by 3 and 3 power 3 is 27 minus 1 we get from here 26 by 3. So अगर आपने उसको लिखना है तो that you can get 8 into 2 by 3 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर मीटर में दिया है स्क्वायर में इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। सो ये मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम सेम है जैसे आप पहले करते रहे, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। आपका एरिया का आंसर कभी नेगेटिव आना नहीं चाहिए।
ठीक है, डेफिन एरिया अंडर द कर्व 19.2 व्हेन वी से दैट फाइंड एरिया अंडर द कर्व, सो योर आंसर इज ऑलवेज बी पॉजिटिव टू कैलकुलेट दैट फंक्शन। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा और होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। आपको जब भी प्रॉब्लम दिया जाए तो यू कैन टेक द इंटीग्रल एंड देन फाइंड द एरिया। सो अब अगर मैं एक्सरसाइज पे जाऊं, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोग माइंड में रखें बच्चे। जब आप लोग माइंड में रखते हैं ना चीजों को, तो फिर आपको शायद चीजों की समझ आए, लेकिन अगर आपने माइंड में नहीं रखा तो फिर वो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, सो मेरे पास यहाँ एक्सरसाइज है 19.2 and according to that exercise some problems that we have to solve from 19.2. In exercise 19.2, कल भी हम इसी एक्सरसाइज और इसी यूनिट की बातें करेंगे, ठीक है। जब कल हमारा लेक्चर होगा इसको एंड करेंगे एंड देन गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम 1 to 20, क्वेश्चन जो है वो 1 से 20 तक है। स्केच एफ एंड डिटरमिन द साइज ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, गौर से समझिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन बड़ी डिटेल में समझाता हूँ, आपने हर क्वेश्चन ऐसे करना है। फिर f of x is equal to minus 2x plus 8, and here between, written is between x is equal to 1 and the second point is x is equal to 4। उसने कहा स्केच भी करें, आपने उसको स्केच भी करना है। तो स्केचिंग के लिए पहले देखें, बेसिकली दिस f of x represent y। इंटीग्रेट करने के बाद से पहले आप स्केचिंग पे जाएं। This represent y, so you can first draw a table in which you can identify which type of graph will be developed against of that. Here is x and here is f of x. F of x mean that is y we call them. So now from x value from 1 to 4. So here 1, now next value is 2, next value is your 3 and next value is your 4। so 3-4 वैल्यूज ले लें इस इंटरवल के दरमियान, बॉर्डर वाली लाजमी लेनी है। नाउ हियर मेरे साथ साथ आपने करना है, पुट इन द प्लेस ऑफ x इज 1, x की जगह पे 1 पुट करें तो फिर क्या आएगा, पुट इन द प्लेस ऑफ x इज 1। here when we put x is equal to 1, that is minus 2 plus 8, what we can get from here, बताएं शाबाश। 6 Sir, 6. 6, okay। now next one, now the second value is 2, put here in the place of x is 2, so 2 2s are 4, 8 minus 4 we get 4। अपना माइक ऑफ करें, बहुत आवाज आ रही है, आप माइक अपना ऑफ करें, किसी का ऑन है। now next 3, 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2। now next is put is 4, in 4 2s are 8, 8 minus 8 is 0, so that is your value। okay, so now you can draw the graph of that function। here the xy plane, here x and here is y। so from here you can take the value from that is 0 is not taken, from started 1 2 3 and the next value is 4, that is the domain। in this domain your answer is 0 2 4। so here write that 2, आप तरतीब से लिख लीजिएगा, अगर आपके पास पेज है तो उस पे तरतीब से लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ताकि आसानी से ड्रा हो जाए। 1 के अगेंस्ट क्या आंसर आया है, 6, दैट इज 6, फ्रॉम 1 के अगेंस्ट 6 आया है, ये पॉइंट बन गया। 2 के अगेंस्ट आपका 4 आया है, सो दैट इज द अनदर पॉइंट। एंड 3 के अगेंस्ट आपका क्या आया है, 2 आया है, दैट इज अनदर पॉइंट। एंड 4 के अगेंस्ट 0 आया है, so your next point is that। so join all the point that is here। ये आपके पॉइंट है तीनों। so आप इधर से डॉटेड लाइन लगाएं, आपने इस रीजन का एरिया निकालना है, दैट इज योर रिक्वायर्ड रीजन बिटवीन
1 to 4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट अबव द एक्स एक्सिस। क्लियरली पता चल गया। वैसे आपको पता नहीं चलता कि फंक्शन का एरिया कहाँ पे लाई कर रहा है। तो जब आपको क्वेश्चन गिवन हो तो आप क्या करना है, आपने कि आपने उसका पहले डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर इफ अबव दी एक्स एक्सिस, अबव यहाँ पे भी होता है और दूसरे क्वाड्रेंट में भी होता है। अगर यहाँ पर अबव आता है और यहाँ पर आता है तो फिर तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बन रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर आप क्वेश्चन के साथ एक बाहर माइनस का साइन लगाओगे। क्या करेंगे? बाहर एक माइनस का साइन लगाएंगे ताकि मेरे एरिया नेगेटिव ना आ जाए। सो वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट, सो वी कैन राइट दैट हियर। एरिया is equal to, domain is identified from 1 to 4, function f of x dx. So area is equal to 1 to 4, okay, function is -2x plus 8। ये नेगेटिव आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जी हमें इसको सॉल्व करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्यू टू एरिया is equal to -2 integral 1 to 4 x dx plus 8 1 to 4 1 dx -2 integral of x is x square by 2 and putting its limit 1 to 4 plus 8x, that is 1 to 4, cancel 2 with 2, the minus sign is outside, and applying the limit is 4 square. When we put 4 square minus 1 square plus 8 into 4 minus 1, so we get from here minus 16 minus 1 is 15, 4 square is 16 plus 8 and 3 24, so we get from here 9 स्क्वायर मीटर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में, तो आपका यह एरिया आ जाएगा स्क्वायर मीटर। यू कैन राइट दैट, स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है किसी एरिया को निकालने के लिए। एक बात मेरी माइंड में रखें कि 19.2 में जब एरिया की बात की जाती है तो लिमिट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आपका नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि आपने ग्राफ नहीं बनाया, और अगर ग्राफ बनाया है तो ग्राफ गलत बनाया है। सो यू कैन जस्टिफाई योर आंसर विद दैट वे। आप उसका आंसर जस्टिफाई करेंगे ग्राफ के थ्रू। ओके, सो नाउ फर्स्ट यू कैन जस्टिफाई योर आंसर विद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, देन यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप फिर उसके बाद अपने प्रॉब्लम पे सोल्यूशन पे जाएंगे। ये टेक्निक है 19.2 में। अगर ये होगा तो आपने क्या करना है कि प्रॉब्लम का ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। दैट इज 19.2। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं बच्चे, शाबाश। बोले बच्चे, क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चे कि क्या क्या चीजें? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 19.2 जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तो इसके सारे केसेस भी बताऊंगा कि अपर कैसे आता है, डाउनवर्ड कैसे आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफ की पोजीशन भी देखेंगे। ये तो मैंने अभी एक एक्सरसाइज का पहले ही क्वेश्चन करवाया है और मैंने उसका ग्राफ बता दिया है। तो कल इंशाल्लाह जो हमारी अरेंज क्लास है 3 आवर्स की, उसमें हमने क्या करना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखना है कि एरिया जो है वो कहाँ पे लाई करता है, और फिर उसके बाद हम उसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो कोर्स कंटेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका मेन जो टॉपिक है दैट इज आफ्टर द मिड यूनिट नंबर 17, यूनिट नंबर 18, यूनिट नंबर 19 एंड क्विक मैथ, दैट इज मेजर आपका पोर्शन है।
ठीक है। क्विक मैथ में बेसिकली जनरल मैथमेटिक्स है कि जी रेशो के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों को हर किस्म का एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, दो दो तीन तीन, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास दिन है और लेक्चर्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे कि क्विक मैथ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, उसके बाद अगर हम चलें तो एंगल जो है वो कैसा बनता है, वो मैक्सिमम, मिनिमम, एज ऑफ द एज फैक्टर जो होते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं बेटे की एज इतनी है और फलां की एज इतनी है, तो ये वो वाले प्रॉब्लम्स हो गए। एक ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, 10 मिनट में कहाँ पहुंचेगी, ये वाले क्वेश्चन हो गए। दैट इज द क्विक मैथ, जनरल मैथ होती है, वो एक पोर्शन आपके कोर्स में है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट उसके 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको मैक्सिमम करवा दूंगा और आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दे दूंगा। ठीक है जी सर। सर ये फाइनल्स के लिए है जी। कोर्स? फाइनल के लिए जो रूल है वो बच्चे ये है कि मिड से आपका 25% का पेपर बनता है, ठीक है, और मिड के बाद 75%, यानी कितने मार्क्स का आपका फाइनल होता है बच्चे? 40 40 50 का। 50 50 50 मार्क्स का ना, तो 40 मार्क्स का या 50 मार्क्स का? 40 मार्क्स होता है सर बच्चे। 40 40 मार्क्स में ना, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 28 29 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका ज्यादातर जो है वो आफ्टर मिड आता है, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा होता है वो फिर आपका बिफोर मिड आता है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन का कोई पार्ट होगा जो बिफोर होगा, अदरवाइज सारा आपका आगे से आएगा। सर बिफोर मिड्स में कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा चैप्टर हमें रिवाइज टाइप करना चाहिए? वो मैं आपको बच्चे बता दूंगा। बेसिक तो स्टांस ये है कि आपको यूनिट नंबर 16 देखना चाहिए, लेकिन मैं जब हम पेपर इंशाल्लाह प्लान करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको सारी चीजें वो भी बता दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, सो ये आज का आपका ये यहाँ लेक्चर है। फिर अटेंडेंस अभी लगाते हैं, और एक दो चीजें और जो इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को समझानी है। नंबर 1, जब आप असाइनमेंट और क्विज करते हैं तो अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर क्लियरली लिखें, ठीक है। और एक चीज ये, दूसरी ये कि हसनैन है क्लास में भी? हसनैन, आई थिंक हसनैन नाम था। हुसैन होगा सर। हुसैन, हुसैन सॉरी तो सॉरी, नहीं है। हुसैन सॉरी, है ना। तो वो उसके स्टूडेंट का ना, एक स्टूडेंट वही था जिसके असाइनमेंट और क्विज तो अनरीडेबल है, पिक्चर भी क्लियर नहीं ली, तो वो रीडेबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि पेपर क्लियरली आप लोग ना एक दूसरे से ना इस तरह असाइनमेंट कर रहे होते हैं जैसे कि सारा खुद बिल्कुल कुछ नहीं आता, आपने सारा वो कॉपी किया होता है। सेम मिस्टेक एक बच्चा करता है तो उसके पीछे 3 बच्चों ने और ने भी वही मिस्टेक की होती है। तो लिहाजा असाइनमेंट खुद किया करें। ये नहीं कि चलें ठीक है आप लोग आपस में कंबाइंड स्टडी करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये कि आइडिया लिया करें और किया खुद किया करें। आप बिल्कुल सेम टू सेम वही सॉल्व करके वहीं पे पेस्ट कर रहे होते हैं तो वो सेम मिस्टेक राइज होती है। तो कोशिश करें कि आपकी असाइनमेंट्स और जो बाकी क्विजेज हैं उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। आज मैं इंशाल्लाह आपको एक असाइनमेंट और एक क्विज रिटर्न कर दूंगा। दूसरी असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है अदील? एक और 4 तारीख असाइनमेंट है सर। कौन सी तारीख है? 4। 4 है, ठीक है। तो वो 4 को आप जब सबमिट करवाएंगे तो वो भी चेक करके रिटर्न कर दूंगा। बाकी वो चेक हो गई है असाइनमेंट, पहले मैं एक असाइनमेंट एक क्विज रिटर्न कर चुका हूँ, अब नेक्स्ट असाइनमेंट और क्विज आपको रिटर्न कर रहा हूँ। ये आपकी असाइनमेंट है, इसके बाद एक असाइनमेंट और एक क्विज और है। कल का लेक्चर हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, और जो फिर नेक्स्ट होगा तो फिर हम एक क्विज कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है, छोटा सा एक क्विज ले लेंगे। ठीक सर, ओके सर। सर ठीक है। अटेंडेंस ले लें प्लीज। हाँ अटेंडेंस मैंने लेनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है टॉपिक से लिंक तो पहले ये बताएं, फिर अटेंडेंस पे जाते हैं। ओके, मैं अटेंडेंस लेता हूँ। सो नाउ टेकिंग अटेंडेंस।
डेफिनेट इंटेग्रल्स, ठीक है, हमारा आज का टॉपिक था। मोहम्मद एहसन शाहिद, अदीबा सफदर, Present, sir. अमीर हमजा खान, Present, sir. हुजैफा कुरैशी, हुजैफा कुरैशी, Present है उज़ैफा भी। ओके, सफीउल्लाह बाबर, Present sir. मलाइका अफशर, Present. उरूज सर्फ, Present, sir. आयमा चौधरी, Present, sir. अफाक अजहर, Present. अहमद इजाज, Present, sir. अली अकबर, Present, sir. बिलाल अहमद भट्टी, ये क्लास में थे। अच्छा, फजर खान, Present, sir. हारिस मुस्तफ़ा, सर उसका नेट का इश्यू है सर, लाइट नहीं है उसकी सर। प्रेजेंट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? ज्वाइन किया था उसने क्लास को? स्टार्ट में था फिर चला गया था सर। अच्छा, नेक्स्ट है हसनैन अली खान, ये हमारे Present, साथ। हाँ हसनैन, अब अपनी पिक्चर्स क्लियर लिया करें असाइनमेंट की, आपके असाइनमेंट की पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं आती। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा अब क्लियर हो आपसे। ओके, कोमल बख्तियार, माजिद अली, प्रेजेंट सर। नेक्स्ट है महरीन जोरा जाफरी, Present, sir. अदील तो आया हुआ है, बासिल मुगल, बासिल, सर वो इंटरनेट इशू है, उसका शायद कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमास खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुहेब सज्जाद बुखारी, मोहम्मद सुहेब, ओके, नेक्स्ट है सुहेब नहीं है। नेक्स्ट है मोहम्मद तंजील, Present, sir. नूर अली, प्रेजेंट सर। रिशाल अहमद कुरैशी, प्रेजेंट सर। रिशाल आए हुए? यस सर, प्रेजेंट। ओके, रिशाल आई थिंक आपकी है, नहीं आपकी नहीं, वो दूसरा स्टूडेंट है, मैं बताता हूँ। सकीना हसन, सैयद ओन मोहम्मद, प्रेजेंट सर। सैयदा माहीन वदूद, Present, sir. तस्कीन जोरा, Sir, ये भी थी। अच्छा, यशरून सालिम। प्रेजेंट सर। बच्चे आपकी एक असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, आई थिंक सो। यस सर। हाँ, मैं कल चेक कर रहा था, आपकी असाइनमेंट नंबर 2 जो है मिसिंग है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं। ज़ियार बिन आसिफ, प्रेजेंट। जुबैर हैदर खान, प्रेजेंट सर। हमना नियाजी, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट है वो भी। अच्छा, मोहम्मद उमर है, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद उमैर, उमैर नहीं है, अलीमा अली आगा, सर ये वो पहले सेशन में थी, इसका भी लाइट इशू है। चले मैं ऊपर अटेंडेंस रिमार्क्स में डाल देता यस। हूँ। नेक्स्ट इनके बाद है हनान कमर, हनान कमर, अच्छा नहीं है, मोहम्मद आदम, मोहसिन नियाज, मोहसिन नियाज नहीं है, अच्छा, नेक्स्ट है मोहम्मद दाऊद बिन कामरान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहीर मुगल, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन, आमना जुनैद, ओके, असाइनमेंट होगी, सॉरी अटेंडेंस आपकी होगी है। जो एब्सेंटीज है मोहम्मद एहसन शाहिद है, कोमल है, फिर उसके बाद बासिल है,
सुहेब है, फिर सकीना है, फिर उमर है, फिर हनान है, फिर मोहसिन है, और फिर सर मैं प्रेजेंट हूँ। उमर, नाम मोहम्मद उमर, उमर 141। उमर नहीं, उमैर उमैर। ठीक है सर। ओके, शहीर, और फिर उसके बाद शमसुद्दीन और आमना जुनेद। अच्छा जी, अब ज़रा कुछ चीज़ें आप सुन लें, ज़रा मैं आपको बता दूं। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने कहा कि असाइनमेंट और क्विज पे अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर लाजमी मेंशन करें। दूसरा ये कि प्रॉपर आप पिक्चर लिया करें, एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पेज की पिक्चर ले रहे होते हैं तो वो कम से कम ये चेक किया करें कि जी आपके पेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इतनी असाइनमेंट चेक की है, उसमें किसी का किसी स्टूडेंट का पेज जो है वो सर्कुलेटेड, बार-बार मुझे उसको क्लॉकवाइज सर्कुलेट करके चेक करने में और फिर सारा करके। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग वर्ड या पीडीएफ भेजते हैं। जो बच्चे वर्ड बनाते हैं, जैसे ऑन का पेपर जो था वो वर्ड पे था, तो मैंने उसको पीडीएफ ट्रांसफ़र किया। आप कोशिश करें कि उसको पीडीएफ में ट्रांसफ़र करके सबमिट किया करें ताकि वो आसानी हो फिर। ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें हैं क्योंकि ये आपको कल इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ को क्योंकि आपका दूसरा सेमेस्टर है, आप थ्रू आउट ऑनलाइन जा रहे हैं, तो नेक्स्ट सेमेस्टर आपका जो है वो इंशाल्लाह जब ऑन कैंपस होगा, तो ये चीज़ें टीचर बड़ा देखते हैं कि जी आप असाइनमेंट जमा कैसे करवाते हैं। अब शमसुद्दीन की असाइनमेंट थी, वो पेज ही ऐसे उसने उठाए हुए थे जैसे कि उनके पास इस वक़्त जो है वो जल्दी में थे और पेज अवेलेबल नहीं थे, और जल्दी में उन्होंने असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट करवाई है। सो कोशिश करें कि आपकी असाइनमेंट लगे कि जी आपकी असाइनमेंट है। ठीक है? बात समझ आ गई है? ठीक सर। और जी सर। और दूसरी कि कॉपी पेस्टिंग से थोड़ा परहेज करें। मुसलसल आपकी कॉपी पेस्टिंग आ रही कि आप एक बच्चा जो गलती करता है, सेकंड भी उसके पीछे वही गलती करता है, दूसरा तो क्या फिर तीसरा भी वही गलती करता है और चौथा भी वही गलती करता है। कम से कम आप सेंस तो यूज करें कि 2+4 होता कैसे। अब जैसे क्विज का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, वो सब ने ऐसे ही लिखा हुआ है कि जी 4/3 into x plus this power this one। पता नहीं कैसे बनाया है वो। जब क्वेश्चन को देखा है तो उसने तकरीबन 10 स्टेप छोड़े हैं स्टूडेंट ने। फिर जाके जब एक दो पेपर देखे, एक अदील का पेपर देखा है, दरमियान में एक दो और स्टूडेंट के पेपर देखे हैं, तो वहां पर सही लिखा हुआ था कि जी आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर वैल्यू बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जो क्विज में दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम बच्चों ने ना वो सेम चीज लिखी है कि 4/3 into x plus this one होल पावर ये बन जाता है। सो पहले तो ये जस्टिफाई करना है कि वो टर्म बनती कैसे है। वो टर्म वो बनती नहीं है जो आके आप लोगों ने वहां बनाई है। सो फिर आपके जो है वो कांस्टेंट सी निकालने को कहा, वो भी मैक्सिमम बच्चों ने पता नहीं अजीब सा निकाला है, गलत निकाला है। फिर जो कुछ बच्चे थे उन्होंने जो है वो उसको ठीक निकाला है। सो मैं अब आपको असाइनमेंट और क्विज आज रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, फिर जो आप असाइनमेंट 4 तारीख लास्ट डेट है, कल इंशाल्लाह लेक्चर कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों को एक और असाइनमेंट दे दूंगा। कोशिश करेंगे कि वो असाइनमेंट डेफिनेट इंटीग्रल पे ही सारी हो। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम दे दूंगा, फिर आप डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई बच्चे, सारी बातें? और एक चीज और, एंड ऑफ द डे पे काम ना छोड़ें कि लास्ट डे पे। उस दिन भी मुझे एक दो बच्चे मैसेज कर रहे थे, जब मैंने डेट हालांकि लास्ट असाइनमेंट की एक्सटेंड भी की थी, तो आखिरी टाइम पे मुझे एक बच्चा जो है वो रात को 11 बजे मैसेज करता है, सर मेरा एलएमएस नहीं ओपन हो रहा। सो अगर आप उसको छोड़ते ही आखिरी दिन के 11 बजे पे, फिर तो डेफिनेटली वो नहीं होने वाला, फिर तो वो काम ना करने वाला है। तो जो पेपर आपकी असाइनमेंट या क्विज या जो भी चीज है वो थ्रू एलएमएस ही एक्सेप्टेबल है। वो आप मुझे व्हाट्सएप करें या ईमेल करें, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? सो आपको चाहिए कि ड्यू डेट से पहले उसको रिजॉल्व करके आप सबमिट कर दिया करें। बात समझ आ गई है? अब इतने बच्चे अपलोड कर लेते हैं, अब एक दो बच्चे मुझे व्हाट्सएप करें तो व्हाट्सएप पे एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा है, वो एक स्टूडेंट है अदील, अदील सुन रहे हो ना? अदील, आवाज आ रही यस है मेरी? सर। अदील, वो एक लड़का है यस सुहेब, आज भी क्लास में नहीं आया। वो कह रहा था कि जी मेरा पासवर्ड भूल गया है, तो मुझसे वो खुलता ही नहीं है लॉगिन। तो मैंने उनको कहा कि आप लॉगिन खोलें, कहते मैं आउट ऑफ स्टेशन।
तो जब तक वो LMS पे अपलोड नहीं कर, अब वो मुझे ये नहीं समझ आती कि बाकी टीचरों के असाइनमेंट और क्विज कैसे सबमिट करता है वो। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो आप LMS पे अपलोड करें, ठीक है। अपना लॉगिन इश्यूज है तो वो क्लियर कर लें। इतने 7 दिन 6 दिन आपके पास होते हैं, असाइनमेंट एक दिन पहले करके आप सबमिट कर लिया करें, ठीक है बच्चे। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकें बच्चे, शाबाश। जी बोलें शाबाश, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को आज वाइंड अप करते हैं और फिर इंशाल्लाह कल हमारी 9 o'clock सुबह फिर से क्लास है, ठीक है जी ठीक सर। ठीक है। तो वाइंड अप करें फिर छुट्टी करें। छुट्टी करें सर। जी ओके जी बच्चे, तो फिर यहाँ हमारी ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।